integration, uh, something relating to your art integration as suggested by CBSE is something which I wish to discuss today, and I will also share this recorded video. Just give me a So, but minute. what's the need of this art integration? Uh, What's the purpose of this? Please note, CBSE feels that our education, needs some changes, and right now they have introduced art integration so that student stay interested. And I think in the future they will also integrate dance integration. They will introduce dance integration where teachers are supposed to, dance in between the sessions so that students are able to understand and have the continuous interest in the subject. कुछ भी है सीबीएसई But वाले sir, हैं. it's a type of it's a type of burden on us. मतलब ऐसे एंड में पता है कि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, बच्चों ने पूरे साल कुछ पढ़ा होगा नहीं, अभी पढ़ेंगे, फिर भी अभी देखो सीबीएसई इज कंट्रोल्ड बाय विच गवर्नमेंट. वो कुछ भी कर सकते हैं. सब नोटबंदी भी कर सकते हैं. तो दे कैन डू एनीथिंग. वो सब क्या है, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट है एंड एजुकेशनिस्ट है. दे फील दैट कि दे हैव ऑल द नॉलेज. बट एनीवे, ये कोरोना टाइम पे नहीं होना चाहिए था. बट मैं एक ज्यादा बर्डन नहीं रखूंगा, बट हमें तो अपना फायदा देखना है. ओके, वॉट एवर इज द सिचुएशन, वी शुड ट्राई टू सी दैट वी आर एबल टू, you know take something best out of any situation. sir, is it compulsory for all the students? Yes. अब देखो, in art integration, yesterday in school I discussed this thing. I think you are able to see on your screen. Yes or no? Are you able Yes, to? sir. Ha, so you are now, first of all, before I explain this, try to understand only a positive person can do something good in life and can be happy. Okay, so now whatever is the situation, I have, first of all, I am not connected with any of the teacher in any of the school. Okay, I try to think that what best can be done. So here what I have thought, कि in 12th standard you should learn something which will challenge you for sure, but this will be practically very useful for you. So now look here what I have decided. Okay, ये और स्कूल शायद नहीं कर रही होगी. ये खुद मैंने अपने आप से बनाकर सोचा है कि स्टूडेंट क्या करेंगे इन आर्ट इंटीग्रेशन. एज पर CBSE, preparation of PPT, PowerPoint presentation, is also the art. Okay, now we have one concept called elevator pitch. Yes or no? Where you are supposed to present your business idea in front of your investors. So here already you have prepared the business plan, and what you are supposed to do, you will have to prepare a 5-minute video. Okay, in this video, like as I prepare video for my subject, in the background there is one screen where your textbook is visible and you are able to see in one box my expressions and my explanations. So you need to prepare the video in this way, 5 minutes video. Purpose is to see that you should try to convince the angel investors or potential investors about your business idea. ओके, तो आपने ऑलरेडी बिजनेस प्लान बनाया है. अब सामने वाले को क्या है कि इम्प्रेस करना है ताकि वो आपको चेक फाड़ कर दे और आपको पैसे मिले. आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट यू आर सपोज टू डू. अब ये कैसे करना है उसका स्ट्रक्चर समझो. देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल, बी पॉजिटिव. देखो, ये जो आप 5 मिनट्स का वीडियो बनाओगे, लेट मी शेयर विथ यू. Or what do you feel? Video editing or video making is one of the essential skill in today's time. Yes or no? क्या लगता है आपको? वीडियो यस एडिट. सर, और आने वाली टाइम में तो पूरा ही ऐसा हो जाएगा. यस. ओके, तो हम क्या है इसको वीडियो से कनेक्ट कर रहे हैं. तो देखो, आपको कुछ शायद क्या है पहले लगेगा कि ये थोड़ा टेक्निकल है या थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, बट हमें तो अपना रास्ता क्लियर करना है, गवर्नमेंट कुछ भी बोले. तो वीडियो एडिटिंग स्किल आपकी इंप्रूव होगी, तो ये बहुत बड़ी बात है. अनदर थिंग इज सेड कि इन फ्यूचर ऑल्सो, इवन इफ यू विश टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस, ओके,
तो भी आपको पेरेंट्स से भी अगर पैसे मांगने हैं तो डोंट यू फील दैट यू नीड टू हैव कन्विंसिंग पावर? यस और नो? आप पैसे मांगोगे और डायरेक्टली ही आपके पेरेंट्स दे देंगे विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन और विदाउट काउंटर क्वेश्चनिंग और विदाउट डाउटिंग, ऐसे पेरेंट्स तो बहुत नसीब वालों को मिलते हैं। एम आई राइट? अरे कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ, और ये महक, रिद्धि, उनकी तो आवाज ही नहीं आ रही है, एंड प्रत्युष। ओके, सो व्हाट इज द टारगेट कि यू विल हैव टू प्रिपेयर अ 5 मिनट वीडियो और बेस्ड ऑन अवर बिजनेस प्लान इम्प्रेस कर देना है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि राइट नाउ ड्यू टू कोविड इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू कम टू स्कूल, इसलिए वीडियो मोड रखा है, प्रैक्टिकल नहीं रखा है। तो व्हाट यू आर सपोज टू डू कि 5 मिनट में से 3 पार्ट है। पहला पार्ट क्या होगा? इंट्रोडक्शन। यू नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड योर बिजनेस। ओके, एंड इन बोथ द केसेस ट्राई टू से समथिंग पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने बारे में अपनी यूनिक स्ट्रेंथ बता सकते हो। ओके, शिवी, व्हाट इज योर प्रोडक्ट? So sanitizer. Due to COVID, I chose sanitizer. Sanitizers. Okay, so basically let's say कि your product is uh, relating to healthcare. Okay, तो now as an entrepreneur आपको अपनी strength बतानी है. Okay, how important do you feel the sanitizer is, एंड बिजनेस के बारे में भी लिंक करना है कि इन फ्यूचर आफ्टर कोविड अवेयरनेस में क्या चेंज हुआ है, एंड डोंट look at the present demand only, just try to look at the future demand. Okay, so a USP, unique selling point आपके business का क्या होगा, and vision और mission of your business, this is most important. कोई भी businessman एक vision या mission से चलता है। For example, ये बाबा रामदेव, उनका विजन क्या था कि हेल्थ इंप्रूव करनी है बिना दवाई या फिर बिना ट्रीटमेंट, यानी कम खर्चे में योग से लोगों को क्या है कि अच्छी हेल्थ देनी है। दिस इज फॉर श्योर दैट। केमिकल फ्री प्रोडक्ट से करना है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट से हाँ, ना यस, और मतलब स्वदेशी, यस, केमिकल फ्री आयुर्वेद को प्रमोट करना है, स्वदेशी मूवमेंट। ओके, तो स्वदेशी प्रोडक्ट से हेल्थ में एक क्या है कि रिवोल्यूशन लाना है। ओके, सो आयुर्वेदा एंड योग, ये दो उनके मेन क्या हो गए? यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट का हो या फिर विजन स्टेटमेंट का हो या मिशन का हो लाइफ का। तो ईच एंड एवरी बिजनेसमैन हैज सम विजन और मिशन। तो आपका विजन या मिशन क्या है? ओके, जो आपको अपने बिजनेस में क्या है? फॉर एग्जांपल, आपका शिवी विजन स्टेटमेंट हो सकता है टू you know have a clean surrounding, or you can say to have a germ free environment, यानी रिलेटिंग टू दैट मैं आपको हिंट दे रहा हूं क्योंकि आपका प्रोडक्ट है सैनिटाइजेशन, तो एक विजन या मिशन आपका क्लियर होना चाहिए। ओके, देन here we have financials. now already you have prepared P&L account, yes or no? प्रोजेक्टेड एक P&L अकाउंट बनाया था 1 साल का, and you also have calculated ROI and ROE. Am I right? और कुछ प्रोजेक्ट को मैंने कहा था कि ROI बढ़ा दो। सो इन्वेस्टर्स को मेनली किस में इंटरेस्ट होता है? कितना प्रॉफिट बिजनेस कमा के देगा, उसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है। ओके, तो आपको ये जो पीपीटी का सपोर्ट लेना है, आप अपना फोटो भी रख सकते हो, नॉट नेसेसरी आपका खुद का वीडियो है तो जरूरी नहीं है। तो बिजनेस के बारे में भी लोगो जो भी आपने सोचा है, तो ये पीछे पीपीटी चलती रहेगी, फ्रंट में आप बोलोगे, एंड फिर ये फाइनेंशियल्स टाइप करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हैंड रिटन है, उसका फोटो भी चलेगा। हमें कोई एकदम बहुत बड़ा मेहनत वाला काम नहीं हाँ करना सर, है। वही पूछना था कि हमने जो आपको हम्म। पहले जब पीडीएफ भेज दिया था, हम्म। तो हम अगर बैकग्राउंड में वो रखें तो मतलब क्योंकि हमने सब कैलकुलेट करके ही रखा है उसमें, तो हम हाँ, अगर देखिए, पीपीटी ने उसमें ये सेम क्वेश्चन कल आया था कि अगर आप क्या है कि वो पीडीएफ रखोगे तो पीडीएफ में बहुत सारी चीजें हैं। ओके, तो पूरा पीडीएफ मत रखो क्योंकि 5 मिनट है आपके पास, एंड आपको सिर्फ कुछ ही पार्ट इंटरेस्ट करने हैं। वो पीडीएफ तो आपने ओवरऑल क्या है बनाया था,
बराबर। लेकिन अब हम तो कुछ ही पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो चलेगा पीडीएफ भी, लेकिन पीडी सबसे सही रास्ता ये होगा कि पीडीएफ में जो जो चीज काम की है ना, उतना कट करके पीपीटी बना दो। वो तो सिर्फ इजी अच्छा काम है। हाँ, वो तो उसको कस्टमाइज़ करके कर देंगे, बट सर जब हमने बस। इंट्रोडक्शन में लोगो बनाया है, फिर हाँ। टैगलाइन जो किया है, वो हम्म। सब तो इंट्रोडक्शन में आएगा ना? हाँ, यस, तो वहां पर आपका फ्लो अलग था, बराबर। यहाँ पर एक्चुअली में 5 मिनट में इम्प्रेस करना है इन्वेस्टर्स को। तो इन दिस सिचुएशन यू विल हैव टू चेंज द स्ट्रेटेजी। तो आई सजेस्ट कि यू प्रिपेयर सेपरेट पीपीटी, वरना पेज को आगे पीछे बार बार करना पड़ेगा, वो बहुत ही यानी गंदा लगेगा। ओके, सो पहले से प्लानिंग होना चाहिए 5 मिनट्स में आप क्या बोलोगे और पीछे तब कौन सी स्लाइड चलेगी। आर यू क्लियर? सो फाइनेंशियल्स पीएनएल में, और आपने ये कैलकुलेशन ऑलरेडी किया है, उसी का वो स्क्रीनशॉट पीपीटी में आप क्या है पेस्ट कर दो। एंड if you remember I told you कि if you invest in fixed deposit तो you can earn around 7%. Okay, if your business is able to earn 20%, okay, or at least 15%, then it's a good business. Many person might be interested in investing. तो यहाँ कम से कम 20% का आरओई आपको बताना होगा। मैंने कुछ प्रोजेक्ट में बढ़ाया था। एंड इफ यू शो दिस फाइनेंशियल्स, देन एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा इन फ्रंट ऑफ इन्वेस्टर्स। एंड आफ्टर दिस थर्ड पार्ट में आपको वैल्यूएशन गेम बतानी है। वी नो दैट के वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स आर मेनली इंटरेस्टेड इन वैल्यूएशन। इट्स अ वैल्यूएशन गेम। अब ये वैल्यूएशन गेम क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन इन द मूवी मार्केट। ओके, सो क्या होता था मार्केट में, एक कंपनी है जिसके बारे में हवा क्रिएट की गई। ओके, आपको पता होगा इवन स्कैम मूवी उसमें भी वही था कि हवा क्रिएट की गई एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए, पॉजिटिव माहौल क्रिएट किया गया, सो दैट डिमांड बढ़ गई। ओके, और शेयर का प्राइस बढ़ गया। तो एंजल इन्वेस्टर्स यही होते हैं कि ये कंपनी मार्केट में किसी को पता नहीं है, वो पैसे लगाएंगे। ओके, कैश थेम यंग एंड वॉच थेम ग्रो, ये उनका फंडामेंटल होता है। कैश थेम यंग एंड वॉच थेम ग्रो। कंपनी को पहले से दबोच लिया, छोटी थी तब, पैसे डाल दिए, ओनर बन गए, और अब जब ये कंपनी लिस्टेड होगी या लोगों के नजर में आएगी तब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मान लेते हैं कितने पैसे की जरूरत है वो आप इसमें बताओगे। ओके, फाइनेंशियल्स पार्ट में ही यू विल ऑल्सो टेल हाउ मच फंडिंग यू आर रिक्वायरिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट। खुद के कितने पैसे लगाओगे वो भी मेंशन करना, और इन्वेस्टर से कितने चाहिए वो भी मेंशन करना। एंड उसको वैल्यूएशन गेम बताओ, और याद रखिए उसको 5 साल के बाद कितना वैल्यूएशन आपको लगता है होगा, या 3 साल के बाद हाउ मच वैल्यूएशन यू आर एक्सपेक्टिंग वो बताना है। तो 5 साल में मिनिमम 4 टाइम्स वैल्यूएशन होगी ऐसा आपको बताना है। अब आप सोचोगे सर ऐसा पॉसिबल है? यस, इट इज पॉसिबल। और सबसे पहले अगर आप ऑप्टिमिस्टिक हो, बराबर, तभी वो क्या है कि कन्विंस होगा। किसी को कन्विंस करना है तो मुझे बताओ, उसके बेनिफिट्स कम बताओगे या ज्यादा बताओगे? व्हाट डू यू फील? सो ज़्यादा ही बताएँगे। ज्यादा ही बताएंगे। तो यू विल हैव टू यू नो ये नंबर से इंप्रेस करना है अभी आपको कि भाई इफ यू आर इन्वेस्टिंग 50 lakhs एंड over a period of 5 years, uh, as per You our will be able to earn calculations, 2 crore. हाँ, minimum valuation of this company would be minimum 4 times। तो इसका मतलब वो सर तो इस वैल्यूएशन में हमें मतलब आपकी वॉइस बीच में बंद हो गई थी। इन दिस वैल्यूएशन आपको क्या है कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फॉर 5 years, पूरा पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना है, लेकिन पहले साल का तो आपने बना दिया है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा। थाउज़ेंड आप दूसरे तीसरे चौथे पांचवें साल में थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दो, बराबर। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में रखो कि धीरे धीरे बढ़ रही है। एंड एक्सपांशन प्लान कि हाउ यू आर गोइंग टू एक्सपांड योर बिजनेस। फॉर एग्जांपल आपका जो प्रोडक्ट है सैनिटाइजेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, तो उसकी मार्केटिंग कैसे करोगे, कौन से अलग अलग पर्सन्स के साथ टाइप करोगे, फ्रेंचाइजी मॉडल्स में जाओगे, यानी क्या टारगेट है। कोई भी प्रोडक्ट को बेचने के अलग अलग तरीके हैं, या इफ यू विश टू गो फॉर डिजिटल मार्केटिंग, वॉट एवर इट मे बी, विच आर योर एक्सपांशन प्लान्स, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। देन
प्लान फॉर आईपीओ, अगर आपको लगता है कि आप अपनी कंपनी को पब्लिक लेकर जाना चाहते हो, ओके, बड़े लेवल पर 5 साल की बात करना चाहते हो, तो यू कैन मेंशन दैट। एंड ये जो मैंने अभी बताया कि ये बताने के बाद आप उनको मिनिमम वैल्यूएशन कितनी हो सकती है एज पर योर एस्टिमेट आफ्टर 5 years वो बताओगे। एंड इससे ही वो कन्विंस होंगे कि यस, ये प्रोजेक्ट तो बहुत भारी लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, और उसमें शायद उनको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? क्या करना है, यू विल हैव टू प्रिपेयर अ 5 minute वीडियो। ओके, ये एलिवेटर पिच के नीचे एक कंसेप्ट दिया था। इफ यू आर हैविंग द टेक्स्ट बुक, उसमें आप जरा देख सकती हो। एंड जस्ट उसके नीचे ये था कि यू कैन ऑल्सो यूज पीपीटी और स्लाइड शोस, तो हम वो सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं। ओके, एंड अब ये कैसे करना है, तो लेट मी शेयर विथ यू द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर। देयर इज वन सॉफ्टवेयर विद द नेम फ्लैशबैक एक्सप्रेस। ये आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्लैशबैक एक्सप्रेस फ्री है। नाउ फ्लैशबैक एक्सप्रेस क्या करता है कि आपके सामने कैमरा होना चाहिए, बराबर। जैसे लैपटॉप में ही वेबकैम होना चाहिए या लैपटॉप में कोई भी कैमरा है, तो दैट कैमरा विल रिकॉर्ड योर वीडियो। आपका खुद का वीडियो वो रिकॉर्ड कर देगा एंड पीछे स्क्रीन चलानी है। इट मीन्स सेट, जब ये सॉफ्टवेयर आप ऑन करोगे, स्टार्ट करोगे, तो दो चीज साथ में चलेगी। ओके, एक चीज होगी आपका पीपीटी, और दूसरी चीज होगी आपका वीडियो पर्टिकुलर पोर्शन में। यू कैन मीन्स प्लेस एट एनी मतलब पॉइंट हमें ऑफ टाइम। वो मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन रखना है और वो स्लाइड शो, स्लाइड शो शुरू कर हाँ, देनी है, और वो यस, वेबकैम हमें रिकॉर्ड करेगा, तो ये इस सॉफ्टवेयर की हाँ, मदद से वैसे हो जाएगा वीडियो वीडियो कंबाइन। कन्वर्ट हो जाएगा। यस, जैसे मैं अपने वीडियोस बनाता हूँ वो इसी से है, फ्लैशबैक एक्सप्रेस, बराबर। पीछे मैं पीडीएफ बताता हूँ टेक्स्ट बुक, उसकी जगह पर आप पीपीटी बनाओगे। और इसमें आपका वीडियो क्यों जरूरी है? जैसे कल किसी ने पूछा था, धैर्य ने, कि एनिमेशन कुछ, मैंने बोला एनिमेशन में मेहनत ज्यादा है, और मुझे बताओ कि कोई भी बिजनेसमैन बिना शक्ल देखे पैसे इन्वेस्ट करता है क्या? इन्वेस्टर, नो, क्योंकि सब बिजनेस तो फेस टू बहुत फेस सारे हैं। कॉन्वर्सेशन होता यस, बिजनेस ही सर में नहीं, गूगल पे सर्च करो, टॉप 10 आइडियाज फॉर बिजनेस बहुत मिलेंगे। तो बिजनेसमैन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, वो बिजनेस को, क्योंकि काफी बार डाउनफॉल आएगा, आप नेगेटिव बन जाओगे, तब आप अपना रास्ता कैसे निकालते हो? एज वी हैव सीन इन केस ऑफ गोली वड़ा पाव, कंपनी बंद होने की तैयारी में थी, फिर भी बाउंस पे कैसा करते हो, वो डिपेंड करता है बिजनेसमैन के ऊपर। हैंस आपको अपना फोटो रखना है। आप फुल आना चाहते हो, हाफ आना चाहते हो, इट इज अप टू यू। ओके, ट्राई टू सी दैट यू आर वेयरिंग गुड, स्पेशली इफ यू आर इन ब्लेजर देन इट वुड बी फाइन। ओके, स्कूल के यूनिफॉर्म में ही आप अच्छे लगोगे, तो इट इज अप टू यू। लेकिन एक प्रोफेशनल लुक और एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस के साथ आपको ऐसा वीडियो बनाना है जो आप देखो तो भी आपको मन हो जाए कि नहीं, ये बिजनेस करने जैसा है। तो फील कॉन्फिडेंट, भले वो थियरी है। देखो, nothing will realize in practical world unless some person is having faith in that. तो if you have faith in your business plan, only then it will work. अगर आपको अपने बिजनेस प्लान में फेथ नहीं है, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी इसमें विजिबल नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस इज द की टू कन्विंस दिस इन्वेस्टर्स। एंड 5 मिनट का ही वीडियो बनाना है, एंड आपके पास लेट से 31 जनवरी, तो यू हैव अराउंड 10 days टाइम। एक आध दो आगे पीछे भी चलेगा। सो इजीली यू कैन डू दिस। काम तो 5 मिनट्स का है, और अगर आप मेहनत करते हो ना, तो ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 7 hours में ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, सो एनी फर्दर डाउट्स इन दिस, फील फ्री टू आस्क। सर बट सर बट अगर अगर हम कोई और सब्जेक्ट में इन्वॉल्व है, जैसे मैं इकोनॉमिक्स में हूँ, तो भी ये करना है? Yes, it is for each and every subject. आर्ट इंटीग्रेशन हर सब्जेक्ट के साथ इंटीग्रेट करना है। यू गॉट दिस पॉइंट? तो तो मतलब जब इकोनॉमिक्स का मैं चूज कर रही थी ना, तब मैम ने ऐसे बोला था कि एक सब्जेक्ट का अगर हो जाएगा तो मतलब दूसरे सब्जेक्ट में आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे।
नहीं नहीं, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मुझे कल ही निधि मैम ने कहा है। एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। सीबीएसई ने जो निकाला है ना, वो क्या कहते हैं, व्हाट दे विश टू से, कि लर्निंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, थोड़ा प्रैक्टिकल बनाना है। ओके, तो आज आर्ट इंटीग्रेशन है, तो प्रिपरेशन ऑफ पीपीटी इज ऑल्सो इन आर्ट, तो इसमें आप क्या बना रहे हो, पीपीटी। अच्छा, वीडियो मेकिंग इज ऑल्सो इन आर्ट, तो इसमें आप वो भी बना रहे हो, बराबर। और आप देखो कितना हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। ओके, और हम सीख क्या रहे हैं, किसी की जेब से पैसे निकाल कर कैसे अपनी जेब में रखना। ओके, तो ये लाइफ की बहुत बड़ी कला है। तो हम कितनी सारी प्रैक्टिकल चीजें इस प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। सो एज आई टोल्ड यू कि हर स्कूल अलग अलग कर रही होगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा प्रैक्टिकल आप क्या कर सकते हो इन 12th क्लास। तो यू गॉट दिस पॉइंट, बहुत ही अच्छी स्किल्स इसमें आपकी डेवलप्ड होगी। और स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि कंप्यूटर में ये सब करना, बट फ्यूचर बिलोंग्स टू डिजिटल वर्ल्ड। लेट मी टेल यू वेरी फ्रेंकली, ओके, डिजिटल में ही अब दुनिया बसने वाली है। पूरी स्कूल मोबाइल में आ चुकी है, पूरा एजुकेशन मोबाइल पे आ रहा है। अब मोबाइल पे ही सब सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आई वांटेड टू लूज माय वेट, ओके, so I was searching for digital solution. In today's time people are searching for digital solution, बराबर। तो काफी ऐसे आपने देखे होंगे, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ऐड आती है, एंड वो पर्सन आपकी इंटरेस्ट के मुताबिक उनको पता चल जाता है गूगल को कि भी आपको किस में इंटरेस्ट है, हेल्थ में इंटरेस्ट है, खाने में इंटरेस्ट है, घूमने में इंटरेस्ट है। अकॉर्डिंगली वैसी एड आपके स्क्रीन पर आती है, और जब आप उस पर क्लिक करते हो तो एक लैंडिंग पेज क्रिएट होता है। ये देखिए, फनल, मार्केटिंग फनल, मैं कुछ प्रैक्टिकल बता रहा हूँ जो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग में फनल्स होते हैं। फनल यानी इस वे से एक होता है, आपने टाइम मशीन देखी होगी। तो पहले एकदम ऊपर वाला पार्ट है, यानी ये ऐसे कस्टमर्स है कि जो अभी आपको पहचानते नहीं है, बराबर, लेकिन जस्ट उनको पता चला है कि आप कुछ बेच रहे हो। तो जैसे आप क्लिक करते हो फेसबुक या इंस्टाग्राम की एड पर, तो लैंडिंग पेज पर आता है। तो एक निखिल करके लड़का है, विथआउट जिम कैसे वजन कम करना है, उसके एक्सरसाइज वगैरह करवाता है, बताता है। और 499, 500 रुपीज में 28 डेज तक वो वीडियो भेजेगा। ओके, और मुझे तो सस्ता लगा ऑब्वियसली। 28 डेज तक अगर आप कोई पर्सनल ट्रेनर हायर करो जिम में जाके, तो कितना चार्ज लगता है, बहुत कॉस्टली होता है। 500 रुपीज में आई विल बी गेटिंग 28 डेज तक वीडियो, और प्लस काफी बोनसेस है, कुछ उसकी किताबें, बुक्स वगैरह। मैं तो खुश हो गया यार, जबरदस्त ऑफर है। फिर जैसे वो ऑफर लेते हैं, कुछ टाइम के बाद उनकी और लाइव वर्कआउट, ओके, ऐसे कुछ अलग अलग प्रीमियम प्रोडक्ट्स, यानी पहले ही कस्टमर को 5,000 का माल मत बेचो, पहले 500 में उसको जितना वैल्यू हो सके उतना देखो। ओके, उसको बेनिफिट लगेगा, 28 डेज तक एक्सरसाइज करेगा, वजन कम होगा, अच्छा लगेगा, तो वो अब दूसरा प्रीमियम प्रोडक्ट ले सकता है। तो धीरे धीरे करके कस्टमर को हायर लेवल का सेल्स करना होता है। ये डिजिटल मार्केटिंग का कंसेप्ट है। तो लैंडिंग पेज में बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स होते हैं, तो निखिल क्या है, क्या करता है, उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को क्या बेनिफिट हुआ, टेस्टिमोनियल्स, कस्टमर ने जो लिखा उनका फोटो, फीडबैक एंड ऑल, यानी बहुत जबरदस्त बनाया जाता है ये लैंडिंग पेज। तो ये सब थियरी में कब आएगा, जब दुनिया और आगे निकल जाएगी, तब ये चीज वो लोग थियरी में रखेंगे। ओके, सो और कोई क्वेश्चंस इसमें? अच्छा, चैट बॉक्स में। सर ये वीडियो आप शेयर कर दोगे ग्रुप में? हाँ, ये वीडियो मैं शेयर कर दूंगा। ओके, और कब सबमिट करना है? 31 जनवरी है। और आप तो, मुझे पता है इसे 2-3 दिन ज्यादा ही ले लोगे, बट ठीक है, 10 डेज का टाइम तो है आपके पास। ओके सर। हाँ, तो आई थिंक यू आर क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट। तो सी यू सून, डे आफ्टर टुमारो, जब ऑनलाइन सेशन, नेक्स्ट सेशन होगा, तब से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे जो हमारा पेंडिंग है। सो आज बस ये डिस्कस करना था, तो ट्राई टू वर्क ऑन योर प्रोजेक्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। सर हाँ सर, स्कूल आना वर्थ है? देखो, डिपेंड्स ऑन यू। मेरे सब्जेक्ट में ऑनलाइन में उल्टा अच्छे से रिवीजन हो रहा है, पीपीटी ये सब हो रहा है। और आई फील दैट कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए स्कूल में आना जरूरी नहीं है, क्योंकि
आप उल्टा ऑनलाइन में अच्छे से अगर आपके पास कनेक्टिविटी है तो यू कैन लर्न, इंटरेस्ट आपको होना चाहिए, लेकिन ऑनलाइन में नहीं पढ़ सकते तो फिर आप आइए, अदरवाइज नो नीड। लेकिन उधर आपको स्कूल में कुछ आवर्स डिवोट करने होंगे, तो डिपेंड्स ऑन यू। मैंने आपको बता दिया, अगर कोई स्टूडेंट इच्छा रखता है सीखने की तो ऑनलाइन में वो उतना ही सीख सकता है जितना ऑफलाइन में सीख सकता है। ओके, उल्टा थोड़ा बेटर, क्योंकि मैं यहाँ पर कंप्यूटर से पढ़ा रहा हूँ, कुछ मैं फोटोस या कुछ प्रैक्टिकल मन हुआ तो एक्सेल बता दिया, जो ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। ऑफलाइन में क्लासरूम में वही, ये आप देख सकते हो, यही बोर्ड पे मैं पढ़ा रहा था। ओके, उसका और सर वहाँ पे मतलब पूरा ऐसे मास्क और जो भी शील्ड वगैरह है वो पहन के रहना पड़ता है, तो हाँ, मास्क शायद पहनना होता प्रॉब्लम। है, लंच शेयर नहीं करना होता है, निगरानी रखी जाती है, और ये साइंस कॉमर्स का मिलन नहीं होता है, ये सब थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस है स्कूल में। वो तो रहेगी क्योंकि स्कूल को फॉलो करनी है, ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। हम्म ओके सर। हम्म सो आई होप यू आर क्लियर अबाउट व्हाट टू डू इन प्रोजेक्ट। तो मैं ये वीडियो शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। ओके, बाय बाय। ओके सर, थैंक यू।